Good morning, everyone. Now, in our polity series, we will study the next important topic, that is center-state relation. So, let's start. First, we will see the historical background. As we already covered that the Constitution of India, being federal in structure, divide all power, legislative, executive, and financial power between the center and the state. But there is no division of judicial power between the center and state, because we had already seen that India have integrated judicial system. Like at the apex is Supreme Court, then there is a High Court, then below is the subordinate court. So the distribution of power between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the Government of India Act of 1935. जब हमने historical background वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी फेडरल स्टेट थी उसका कंसेप्ट यहाँ से आया है. इसके अंदर हमने जो है सेंटर बनाया, देन प्रोविंसेस बनाया, और प्रोविंसेस जो थी वो उनको ऑटोनॉमी दी गई. सो द ऑटोनमस प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ऑल्दो मोंटेग्यू चैम्स रिपोर्ट के अंदर भी थोड़े फेडरल फीचर हमें मिलते हैं, सेंटर और स्टेट के जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइड किया गया था, लेकिन 1935 एक्ट के अंदर जो है फिर ज़्यादा डिटेल के अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर और बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट जो है वो की गई थी. दो द फेडरल प्रोविजन was not implemented, it provided a blueprint for the federal state which India established in the Constitution of 1950. So we will study the center state relation under three headings: legislative, administrative and financial. They are in part 11 and 12 of the Indian Constitution. Like legislative and administrative relations are in part 11th of the Indian Constitution and financial are in 12th of the Indian Constitution. So we will study step by step under these heading, like under legislative relation, territorial extent of the central state legislation, distribution of the legislative subject, parliamentary legislation, the state field likewise. So let's start one by one. Center state legislative relation, they are under article 245 to 255 in part 11th of the Indian Constitution. One by one we will see. Like first, territorial extent of central state legislation, then distribution of legislative subject, parliamentary legislation, the state field likewise. So let's start with the territorial extent of central and state legislation. इसके अंदर ये है जो हमारी पार्लियामेंट है वो जो है लॉ पूरे इंडिया के लिए या कुछ टेरिटरी के लिए बना सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाएगा सिर्फ स्टेट के लिए. The law made by state are not applicable outside the state. और पार्लियामेंट जो है दे अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन. जैसे वो कुछ लॉ बनाएंगे तो जो विच विल बी एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो NRI है वो बाहर जाते हैं, उनके ऊपर क्या क्या लॉ एप्लीकेबल होंगे, कितना वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट को ऑथराइज्ड किया गया है. सो दिस इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन. बट इसके अंदर कुछ जो है वो एक्सेप्शंस जो है वो दी गई है, जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि there are certain area in our country और वहाँ पे जो है parliamentary law will not be applicable or applicable with certain modification. Like in our 5 union territories, Andaman Nicobar, Lakshadweep, Ladakh, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, वहाँ पे जो parliamentary law will not be applicable. और प्रेसिडेंट जो है उन यूटीज के लिए कुछ लॉ जो है बना सकता है अपनी मर्जी से फॉर द पीस, प्रोग्रेस ऑफ और द गुड गवर्नेंस ऑफ दीज एरिया. सिमिलरली जो हमारे कंट्री के अंदर देयर आर सम शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, वहाँ पे जो गवर्नर्स होते हैं दे कैन स्टेट दैट दिस लॉ ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज. सो दे कैन से दैट. और असम के अंदर भी जो हमारा गवर्नर है वो बोल सकता है, जैसे वहाँ पे शेड्यूल एरियाज है और बी दीज एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल. और बाकी जो जैसे हमारे शेड्यूल 6 के अंदर जो 4 स्टेट है उनको शेड्यूल एरिया जो है ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया है. उसके अंदर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है. गवर्नर जो असम का है वो बोल सकता है, और बाकी जो 3 स्टेट है जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो बोल सकता है कि पार्लियामेंट्री लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द parliamentary legislation. So next we will see the distribution of legislative subject. There are 3 list: union list, concurrent list and state list. union list के अंदर वो वाले लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जैसे लाइक डिफेंस है कंट्री का, रेलवे है, पोस्ट है, कम्युनिकेशन है, इनकम टैक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यूनियन लिस्ट के अंदर है. स्टेट लिस्ट के जो लोकल गवर्नमेंट हो गया, फिशरी, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन अभी जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर है. कंकरेंट में जो आता है हमारा
क्रिमिनल लॉज वगैरह जो है हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये क्लियर कट जो है वो डिवीजन करी गई है। लेकिन ऐसा है कि इसके अंदर भी कुछ जो है प्रोविजंस है कि अगर यूनियन लॉ है और अगर स्टेट लॉ के अंदर जो है कोई इनकंसिस्टेंसी है और इफ़ दे आर ओवरलैपिंग, यूनियन लिस्ट के अंदर कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट ने या स्टेट लिस्ट के अंदर बनाया, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो यूनियन लॉ जो है दैट वुड बी प्रिवेल। सिमिलरली अगर यूनियन लिस्ट के अगर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कोई लॉ की ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पे भी जो है कंकरेंट लॉ विल बी प्रिवेल्स। तो इस तरह हाँ एक कंडीशन है यहाँ पे स्टेट लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कंकरेंट लिस्ट के अंदर कोई लॉ है, पार्लियामेंट ने भी उसके ऊपर लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है उसके ऊपर लॉ बनाया है और स्टेट लॉ जो है वो पास हो गया है और प्रेसिडेंट के पास चला गया है और तब जो है स्टेट लॉ ही जो है वो प्रिवेल करेगा। अदरवाइज अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द सेंट्रल लॉ और द स्टेट लॉ तो सेंट्रल लॉ विल बी प्रिवेल ऑलवेज। इस तरह से जो है जो हमारी यूनियन सुप्रीमेसी है उसको जो है इंक्लूड किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 42nd अमेंडमेंट जो है उसने 5 सब्जेक्ट जो है वो पहले जो स्टेट लिस्ट के अंदर थे अब उनको कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है वो डाला है। वो है एजुकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, you can note down forest, wildlife, weight and measures, administration of justice, and protection of wild animals। इसको 42nd अमेंडमेंट ने जो है स्टेट लिस्ट से जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है वो डाला है। So these are the distribution of legislative power between the center and state. Now the parliamentary legislation the state will, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कट डिवीजन है कि ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर है। लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशन वेयर द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। वैसे डिवीजन है, दिस इज सेंट्रल लिस्ट, दिस इज स्टेट लिस्ट, दिस इज कंकरेंट लिस्ट। बट कुछ कंडीशंस होगी जैसे कोई एमरजेंसी सिचुएशन है or we will see it where the parliamentary legislation will be valid. So when Rajya Sabha passes a resolution, first अगर राज्यसभा जो है हमारी वो रेजोल्यूशन पास करती है दैट इज बाय सिंपल मेजोरिटी कि इट इज इन द नेशन इंटरेस्ट कि हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो है पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी लॉ है वो लॉ बना सकता है और वो लॉ जो है वो वैलिड होगा फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। लेकिन उसको कितने नंबर ऑफ टाइम जो है हम उसको इन्फोर्स जो है वो कर सकते हैं, दिस इज बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ से बहुत सारे ये चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं विच यू कैन नोट डाउन। एंड सेकंड, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अगर कंट्री के अंदर जो है इमरजेंसी इम्पोज करी गई है देन भी जो है पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। ऐसा नहीं है कि जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई है तो स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना सकती स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट भी लॉ बना सकती है लेकिन इट आल्सो एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और तीसरा जो है वो जब 2 और मोर स्टेट, जब दो से ज़्यादा स्टेट जो है दे आर मेकिंग रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट कि आप जो है लॉ बनाएं, तब भी जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। और ऐसे लॉ जो बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है एंड रिपील कर सकती है लेटर ऑन। और अगर वो 2 स्टेट्स के लिए बनाए हैं और तीसरी स्टेट कोई और बनाना चाहती है तो वो भी लेटर ऑन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसके अंदर जैसे बहुत सारे इंडिया के अंदर इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इस तरह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 है, वो इसी जो प्रोविजन के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो बनाए हैं। एंड फोर्थ इज टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर देखो बहुत सारी जो है इंडिया की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती है एंड हैज़ टू वर्क
और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. और टू इम्प्लीमेंट दैट कन्वेंशन वी हैव टू मेक द नेशनल लॉ. फॉर एग्जाम्पल देर इज वन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी. इन कंसोनेंस विद दैट कन्वेंशन हमने जो है वो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट जो है वो पास करा है. इस तरह बहुत सारी जो है हमने कन्वेंशन साइन की है, रेटिफाइड करी है. लाइक पेरिस एग्रीमेंट है, उसके लिए हमने अभी इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन करके बहुत सारी चीज़ें जो है हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है. पार्लियामेंट को लॉज बनाने पड़ते हैं और वहाँ पे जो है स्टेट लिस्ट के अंदर भी कुछ अगर तब्दीली करनी पड़ती है तो पार्लियामेंट इज डेफिनेटली ऑथराइज्ड टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट. तो इसके अंदर भी जो है जैसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रिप्स वीडियो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी जो है वो कर सकती है. और नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल. अगर प्रेसिडेंट रूल लाइक अंडर आर्टिकल 356 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, तब भी जो है वो डेफिनेटली पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट. और जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं तो जब जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट रूल जब खत्म भी हो जाता है तब भी लागू रहते हैं जब तक वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको रिपील नहीं करती, जहाँ उसको खत्म नहीं करती. सो दिस इज द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन. द स्टेट विल इन अबनॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल तो जो है वो अपनी अपनी पार्ट जो है वो डिफाइंड है. दिस इज इन अबनॉर्मल कंडीशन, जहाँ वैसे कुछ लगता है तो जो प्रोविजन अंदर डाले हुए हैं उसके अंदर जो है वो बना सकती है. सो नेक्स्ट इज सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन. इसके अलावा भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर है. कोई कुछ प्रोविजन अंदर हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे गवर्नर कैन रिजर्व सर्टन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो ओवर द बिल. तो इसके अंदर ये है कि जो कुछ बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन भी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बिल ऐसा इंट्रोड्यूस करना है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो हमें लगता है कि इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रेड और स्टेट के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है, उसके लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा बिल. State list, for example, bill on certain matter enumerated in the state list can be introduced by the state legislature only with the previous sanction of the president. और फिर उसके बाद जो है सेंटर जब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऑल्दो हमारी कंट्री में अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज नहीं हुई. सो these are the center control over the state legislation. So we have covered the legislative relation between the center and the state. और हमने देखा है डिफाइंड है बात, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो सेंट्रल सुपरमेसी है वो इस्टेब्लिश करी गई है. वो इसलिए है नॉर्मल कंडीशन में दे आर सुप्रीम इन देयर फील्ड, लेकिन कुछ जो एक्सीजेंसीज है, एमरजेंसी सिचुएशन है, जहाँ हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने फेडरलिज्म जो है, फेडरल पॉलिटी जो है वो अडॉप्टेड किया बिकॉज द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड मल्टी कल्चरल लिंगुअल सोसाइटी इंडिया. तो उसी वजह से अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी डेवलपमेंटल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों की कोऑपरेशन, हारमोनियस रिलेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमारा सेंट्रल को थोड़ी सुप्रीमेसी देना जो है वो बनता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है फॉर द कंट्री की यूनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और सबको साथ लेके जाने के लिए. So that is why the supremacy to the central has been provided. So next we will study the administrative relation between the center and state under article 256 to 263. So let's start. जैसे हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड करी गई है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर भी जो है सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो डिवाइड करी गई है. सो वी विल सी वन बाय वन एंड so let's start. Distribution of executive power. Executive power of the center extend to the whole of India. Parliament has exclusive power of legislation to the matter enumerated in the union list. Or similarly, executive power of the state extend to its territory with respect to the matter enumerated in the
स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर है उसके पास जो है स्टेट की पावर है, जो यूनियन लिस्ट के अंदर है वहाँ पे हमारी सेंटर की पावर है। और मैटर और जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो मैटर है उसके अंदर हमारा सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों ही लॉ बनाते हैं, ऑल्दो फॉर्म्ड बाय मेनली पार्लियामेंट, बट उसको जो एनेक्ट करती है वो अल्टीमेटली स्टेट के ऊपर ही जो है वो होता है। The next is obligation of the state and the center. The executive power of every state is to be exercised. जो हर स्टेट की जो एग्जेक्टिव पावर है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए so as to ensure compliance और act in accordance with the, और वो जो जितने भी हमारे लॉज हैं पार्लियामेंट के उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ बना रही है विच इज़ नॉट इन कंसोनेंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट, or so as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the center in the state। और ऐसा भी नहीं है कि जो सेंटर गवर्नमेंट के लॉ है उसको impede कर रही है, हैम्पर कर रही है। इस तरह से जो है ये ऑब्लिगेशन जो है स्टेट्स के ऊपर जो है इम्पोज करती है, क्योंकि अगर इसी प्रोविजंस के अंदर ये है कि अगर स्टेट जो है अपनी एग्जेक्टिव पावर इस तरह से ये वाले प्रोविजन जो 1 और 2 है उसको नहीं कंप्लाई कर रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज देर इज वन आर्टिकल 365 356 के अंदर तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। देर इज वन आर्टिकल 365 विच स्टेट दैट वेयर एनी स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद और गिव एनी इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव बाय द सेंटर, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट to hold that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। so ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है टू इम्प्लीमेंट द प्रेसिडेंट रूल। तो जो है यहाँ पे ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के ऊपर कि वो इस तरह से लेकर। दैट नेक्स्ट इज सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन कर सकती है इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा स्टेट्स को। हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। डायरेक्शन ऑन द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे विद इन द स्टेट। और फिर जो है हमारे प्रेसिडेंट जो जैसे प्रोविजन ऑफ एजुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के बंदे हैं। जहाँ कुछ एक पॉइंट और है जो स्कीम्स है ट्राइबल वेलफेयर्स के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके वेलफेयर्स के लिए जो स्कीम्स है उसके लिए भी जो सेंटर है वो स्टेट को बोल सकती है। एंड नेक्स्ट इज म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। म्यूचुअल डेलीगेशन मीन एक दूसरे को उन दोनों की मर्जी के साथ जो है सेंटर और स्टेट एक दूसरे को अपनी एग्जेक्टिव पावर्स जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट है मे विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंटर का कोई भी एग्जेक्टिव फंक्शन जो है वो दे सकती है। सिमिलरली जो गवर्नर है वो कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई फंक्शन है वो सेंटर को दे सकती है। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और प्रोविजन बनाया गया है जहाँ पे एग्जेक्टिव फंक्शन सेंटर की आप स्टेट को दे सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट, बट दैट इज बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय द प्रेसिडेंट। उनकी मर्जी के बिना ही पार्लियामेंट जो है अगर चाहे कोई एग्जेक्टिव फंक्शन वो स्टेट को दे सकती है और स्टेट उसको मना नहीं कर सकती। सो दीज आर द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ पावर्स। Next is cooperation between the center and state to secure cooperation and coordination। देखो सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे टेंशन एरिया स्टम्बलिंग ब्लॉक है विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। Parliament can provide for the adjudication of any disputes with respect to use, distribution, control। interstate river है, बहुत सारे interstate rivers है, valleys है, उसके साथ जो है बहुत सारी states के अंदर जो है वो disputes चलते रहते हैं। तो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर 262 आर्टिकल के अंदर जो है इंटरस्टेट रिवर वैलीज जो है वो एस्टेब्लिश जो है कर सकती है। सिमिलरली प्रेसिडेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो डिस्कस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंटर स्टेट के जो ताल्लुकात है खराब चल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो काउंसिल कर सकते हैं। ऐसी काउंसिल जो है वो सेटअप भी करी थी 1990s में।
और नेक्स्ट इज फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर और द एवरी स्टेट। जो भी सेंटर और स्टेट की एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड है, उनको पूरा जो है क्रेडिट जो है वो मिलना चाहिए और उसके ऊपर पूरा फेथ जो है वो होना चाहिए। और पार्लियामेंट है किसी भी एक अपॉइंट कर सकती है कोई अथॉरिटी को फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरस्टेट ट्रेड। कोई भी इंटरस्टेट ट्रेड, फ्रीडम, कमर्स जो अगर पार्लियामेंट को लगता है तो उसके लिए जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, IPS, IPS are recruited and trained by the center। और at the same time article 312 authorize parliament to create new all india services। all india services जो है वो मेंटेन करने के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्री का करती है। दे हेल्प इन securing uniformity of the administrative system throughout the country, cooperation, coordination, joint action on the issue of common interest between the center and the state। उनका अल्टीमेटली कंट्रोल जो होता है वो सेंटर के पास लाई करता है और इमीडिएट कंट्रोल जो होता है वो स्टेट के पास जो है लगता है। उनको रिक्रूट, उनको ट्रेन सेंटर गवर्नमेंट किया जाता है, लेकिन उनको पोस्ट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो किया जाता है यूनिफॉर्म उनका स्केल, पे स्केल सारा कुछ जो है सेम होता है। दे फैसिलिटेट लियाजन, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द state, so they will implement the policy in consonance with the constitutional ethos or values। नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है डिफरेंट स्टेट के, जैसे पंजाब, हरियाणा, उनके अलग अलग कमीशन अपने हर स्टेट के जो है अपने उनके जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, बट उनको रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट ही वो कर सकता है। Similarly, Parliament can establish joint state public service commission for 2 or more state on their request। और जो हमारी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जो हमारी स्टेट्स की जो नीड है उनको जो है पूरा कर सकती है विद द गवर्नर की कहने पे और विद द प्रायर जो प्रेसिडेंट का कंसेप्ट में उसको जो है वो असिस्ट कर सकती है स्टेट को जब कोई स्टेट उनको रिक्वेस्ट करती है कोई भी जो रिक्रूटमेंट है उसके ताल्लुकात में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। As we already covered judicial system, judges of the state high court are appointed by president in consultation with the CGI, governor of the state। They can be transferred and removed only by the president। और parliament जो है common high court जो है वो 2 और more state के लिए establish कर सकती है। जैसे हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो पंजाब के लिए भी है, हरियाणा के लिए भी जो है वो काम करती है। और नेक्स्ट वी ऑलरेडी कवर्ड नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो है वो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है जो भी लॉ है वो बना सकती है। सिमिलरली प्रेसिडेंट रूल जो होता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम ऐसा नहीं होता कि स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकती। डेफिनेटली दे कैन मेक लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के अंदर जब इम्पोज किया जाता है तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको तो डिसमिस किया जाता है और प्रेसिडेंट ही जो है वो रूल करते हैं। और 360 जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करती है देन आल्सो जो है पार्लियामेंट दे कैन इशू इंस्ट्रक्शन। सो बाकी और भी अदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है लाइक जो सेंटर और स्टेट के बीच में है, जैसे नीति आयोग भी इस्टेब्लिश करी है उसके अंदर भी स्टेट गवर्निंग काउंसिल है जहाँ पे वो दोनों मिलके जो है वो लॉ बना सकते हैं। So these are the center state relation under legislative and administrative। Next we will study the financial relation or the tension area between the center and the state। I hope you understood the center state relation, and if there is any query you can find me always at the StudyGyan Facebook and Telegram link, and please don't forget to subscribe my channel StudyGyan। So see you tomorrow with the next video। Thanks।